ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दस रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार अर्थात अनंत लक्ष्मीवान भगवान आत्मा, जिस पर दृष्टि करने से, जिस पर उपयोग रखने से जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग करता है। ऐसा समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 144 हुई है। उसकी टीका का दूसरा पैराग्राफ फिर से पढ़ने का है। एक बार गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। प्रथम श्रुत ज्ञानना अवलंबनथी એટલે કે જ્ઞાનીની વાણી કે શાસ્ત્રના અવલંબનથી જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનો નિશ્ચય કરીને આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે સ્વભાવથી એવો શાસ્ત્રના આધારે નિર્ણય કરીને પછી આત્માની પ્રગટ પ્રસિદ્ધિને માટે એટલે કે આત્માના અનુભવ માટે પર પદાર્થની પ્રસિદ્ધિના કારણો, પર પદાર્થ છે એ જ્ઞાનમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે, એમાં નિમિત્ત કારણ જે ઇન્દ્રિયો અને મન દ્વારા પ્રવૃત્તિ બુદ્ધિઓ પર પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાય પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે જીવ પાંચ ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન લે છે। તો કે જે જ્ઞાન ઉપયોગ પાંચ ઇન્દ્રિય મનનું અને રૂપી પદાર્થનું અવલંબન લે છે ત્યાંથી ઉપયોગને સમેટીને, ત્યાંથી ઉપયોગને સંકેલીને મતિ જ્ઞાન ને આત્મસન્મુખ કર્યું છે। પહેલું સ્ટેપ બતાવ્યું, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી આત્માના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો। ગુરુદેવ કહે છે ને, પ્રથમ આત્માને જાણવો,
જાણવા માટે સાધન શું? તો કે શાસ્ત્રો, જ્ઞાનીનો ઉપદેશ, એના દ્વારા આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું. જાણ્યા પછી તો કે તારું મતિ જ્ઞાન અનાદિકાળથી પાંચ ઇન્દ્રિય મન પર પદાર્થનું અવલંબન લઈ એ મતિ જ્ઞાન ઉપયોગ બહારમાં ભમે છે. એ મતિ જ્ઞાનના ઉપયોગને પરદ્રવ્યનું અવલંબન છોડ, પાંચ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન છોડ, દ્રવ્ય મનનું અવલંબન છોડ અને એ મતિ જ્ઞાન ઉપયોગને આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ કર. તો આ બીજું સ્ટેપ બતાવ્યું. હવે ત્રીજું સ્ટેપ બતાવે છે. નાના પ્રકારના નઈ પક્ષોના આલંબનથી, એટલે કે અનેક પ્રકારના નઈ પક્ષો. નઈ પક્ષો શું છે? તો કે શ્રુત જ્ઞાનના અંશો છે. નઈ પક્ષો શું છે? તો કે નઈ પક્ષ દ્રવ્યના એક એક અંશને વિષય બનાવે છે. એ જ્ઞાન ખંડ જ્ઞાન છે. નઈનો પક્ષ એટલે વિકલ્પ, વિકલ્પ એટલે રાગ. તો કે છે કે નઈ પક્ષના આલંબનથી થતા અનેક વિકલ્પો વડે આકુળતા ઉત્પન્ન કરનારી, આ ઉત્પન્ન થયેલા વિકલ્પો નઈ પક્ષો એ વિભાવ છે, રાગ છે. ને રાગનું ફળ આકુળતા છે. હવે કે છે કે આ બધી શ્રુત જ્ઞાનની બુદ્ધિઓને પણ, એટલે શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોને પણ સંકેલી લે, મર્યાદામાં લાવ. મર્યાદામાં લાવ એટલે શ્રુત જ્ઞાન મતિ જ્ઞાને જાણેલા પદાર્થોને ભેદ પ્રભેદ પૂર્વક જાણવા માટે પાંચ ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન લઈને પર પદાર્થોનું અવલંબન લે છે. તો કે શ્રુત જ્ઞાન પણ પર પદાર્થનું અવલંબન છોડે, પાંચ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન છોડે, દ્રવ્ય મનનું અવલંબન છોડે અને એ શ્રુત જ્ઞાન પણ બહારથી સંકેલાઈને આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ થાય. ત્યારે શું થાય છે? તો કે મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાનનો ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થયો તો પરના લક્ષ્ય તો એ ઉપયોગમાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતા હતા, પણ હવે સ્વનું લક્ષ્ય કર્યું એટલે નિર્વિકલ્પ થયો. અત્યંત વિકલ્પ રહિત થઈને તત્કાળ એટલે તે જ સમયે નિજ રસથી જ પ્રગટ થતા જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો રસ પ્રગટ થતા આદિ મધ્ય અંત રહિત
આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી અનંત ગુણની શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ. એ શુદ્ધતા, એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, એ અતિન્દ્રિય સુખ આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયું છે. એટલે આદિ મધ્ય અંત એવા ભેદ નથી. તો કે છે આદિ મધ્ય અંત રહિત, અનાકૂળ, આકૂળતા રહિતનું સુખ. આકૂળતાની રહિતતા એ જ સુખ છે. કેવળ એક આખા વિશ્વના ઉપર જાણે કે તરતો હોય. હવે જ્યારે તારો ઉપયોગે, મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન ઉપયોગે તારા જ્ઞાયક સ્વભાવને વિષય બનાવ્યો, ત્યારે જ્ઞાયક કેવો અનુભવાયો? તો કે વિશ્વના 6 દ્રવ્યથી જુદો, શરીર 5 ઇન્દ્રિયથી જુદો, દ્રવ્ય મનથી જુદો, 8 પ્રકારના કર્મથી જુદો, વિભાવથી જુદો, જાણે કે સપ્તમ જુદું દ્રવ્ય હોય એવો જણાણો. એનો અખંડ પ્રતિભાસ થયો. તો કે અનંત વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્મા રૂપ સમયસારને જ્યારે આત્મા અનુભવે છે, એટલે કે જાણે છે. જાણે છે એટલે સમ્યક જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે. તે વખતે જ આત્મા સમ્યકપણે શ્રદ્ધાય પણ છે. શ્રદ્ધા જ્ઞાન બંને એક સાથે ઉત્પન્ન થયું. હજી ચારિત્રની વાત નથી કરતા, માત્ર સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનની વાત કરે છે. તો કે શ્રદ્ધાય છે અને જણાય છે. શ્રદ્ધાય છે એ સમ્યક દર્શન, જણાય છે એ સમ્યક જ્ઞાન. તેથી સમયસાર જ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન છે. એમ કેમ કહ્યું? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એટલે કે સમયસાર, તેની સાથે સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાય અભેદ છે. એટલે આખો અભેદ એક આત્મા કહીને એમ કહ્યું કે સમયસાર સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન કંઈ ભિન્ન નથી. તો આચાર્ય ભગવંતે 3 સ્ટેપ બતાવ્યા કે તું આગમનો આધાર લઈ આત્માના સ્વરૂપનો નિર્ણય કર. મતિ જ્ઞાન ઉપયોગને જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ કર. શ્રુત જ્ઞાનના ઉપયોગને જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ કર. તો જ્ઞાયક કેવો છે એ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં આવે છે. ત્યારે પ્રગટ થયેલું સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન એ જ્ઞાયક સ્વભાવ સાથે અભેદ હોવાથી અમે જ્ઞાયક સ્વભાવને જ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન કહીએ છીએ. હવે હિન્દીમાં ટીકા. जो वास्तव में समस्त नए पक्षों
से खंडित नहीं होता हुआ जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा ये समयसार है। क्या कहा? सॉरी, આપણે दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, क्या कहा? श्रुत ज्ञान, ज्ञानी का उपदेश श्रुत ज्ञान है। शास्त्रों की रचना श्रुत ज्ञान है। तो ज्ञानी का उपदेश का अवलंबन लो या जिनवाणी का अवलंबन लो। तो ज्ञानी के वचन या तो शास्त्र, उसको निमित्त बनाकर आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका प्रथम निर्णय करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, यानी आत्मा के अनुभव के लिए, आत्म स्वभाव को जानने के लिए, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बताया, पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण, पर पदार्थ की प्रसिद्धि कैसे होती है? पर पदार्थ जानने में कैसा आता है? तो कि इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवृत्ति बुद्धि ज्ञान उपयोग, मति ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर विश्व के पदार्थ को ग्रहण मति ज्ञान करता है। तो कि ये प्रवृत्ति बाहर की प्रवृत्ति है, पर प्रवृत्ति है। 5 इंद्रिय पर, द्रव्य मन पर और उसके विषय पर। तो ये मति ज्ञान तो पर द्रव्य को प्रसिद्ध करता है, पर द्रव्य को जानता है। तो कि अब क्या करना पड़ेगा? तो कि वो मति ज्ञान को समेट कर, वो मति ज्ञान को बाहर से समेट कर मति ज्ञान उपयोग को आत्म सन्मुख किया है। ये दूसरा स्टेप बताया कि तेरा ज्ञान उपयोग इंद्रिय मन और पद्रव्य का अवलंबन लेना, तो उसमें तो पर पदार्थ जानने में आएगा। तो क्या अब मैं क्या करूं? तो कि वहां से उपयोग पलट दे मति ज्ञान का। 5 इंद्रिय का अवलंबन छोड़ दे, मन का अवलंबन छोड़ दे,
पर पदार्थ रूपी पदार्थ का अवलंबन छोड़ दे। उसका अवलंबन छोड़कर वो मति ज्ञान जहाँ से आया है, कहाँ से आया है? ज्ञायक स्वभाव में से। मति ज्ञान जहाँ से आया है वहाँ मति ज्ञान उपयोग को एकाग्र कर। तेरा मति ज्ञान मर्यादा में आ गया। उसने ज्ञायक को विषय बनाया। ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप, अनेक प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होता हुआ अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों, क्या कहा कि श्रुत ज्ञान क्या करता है? तो के श्रुत ज्ञान का भेद को नई ज्ञान कहते हैं। नई ज्ञान अनेक प्रकार के भेदों को जानकर विकल्प की उत्पत्ति करता है। वो विकल्प वो राग है। राग है वो आकुलता है। ये जो विकल्प है वो श्रुत ज्ञान की बुद्धि है, श्रुत ज्ञान के भेद है। अब वो श्रुत ज्ञान उपयोग को समेट ले। समेट कर यानी परद्रव्य में से उपयोग हटाकर, मन का अवलंबन हटाकर, 5 इंद्रिय का अवलंबन हटाकर वो श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करने से अत्यंत विकल्प रहित हो जाने से तत्काल यानी वही समय पर निज रस यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख रूप रस प्रकट होने से आदि मध्य अंत रहित अनाकुल यानी आकुलता से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन आया। वह आत्मा के सर्वभाग से आया, क्योंकि आत्मा के सभी गुण आत्मा के सर्व प्रदेश में व्यापे हैं। तो केवल एक पूरे विश्व के ऊपर क्या कहा? जब श्रुत ज्ञान बाहर से समेटकर आत्म स्वभाव सन्मुख हुआ, तब ज्ञायक कैसा जानने में आया? तो कि ज्ञायक दूसरे 6 द्रव्य से भिन्न, शरीर से भिन्न, 5 इंद्रिय से भिन्न, द्रव्य मन से भिन्न, घाती कर्म से भिन्न, विभाव से भिन्न, सबसे भिन्न हो गया। सप्तम द्रव्य जैसा लगा कि मेरा ज्ञायक तो पूरे विश्व के सभी पदार्थ से भिन्न,
शरीर से भिन्न, 5 इंद्रिय से भिन्न, द्रव्य मन से भिन्न, घाती कर्म से भिन्न और विभाव से भी भिन्न। मेरा ज्ञायक 6 द्रव्यों से भिन्न सप्तम द्रव्य पूरे विश्व पर तीरता हुआ, यानी पूरे विश्व को भिन्न रहकर जानता हुआ, अखंड प्रतिभासमयी अनंत प्रकट हुआ उपयोग, ज्ञान प्रकट हुआ अखंड, पूरा ज्ञायक जानने में आया, वेदन में आया। विज्ञान घन, आत्मा तो विज्ञान घन है। ऐसा परमात्मा स्वरूप समय सार को यानी शुद्ध आत्मा को जब आत्मा अनुभवन करता है यानी जानता है, उसी समय ही आत्मा सम्यकपणे श्रद्धान में प्रतीति में आता है और सम्यक प्रकार से आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान द्वारा जानने में आता है। वो प्रतीति और सम्यक ज्ञान दोनों पर्याय आत्मा के साथ अभेद होने के कारण समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। पहले आत्मा को जानने के लिए ज्ञानी का उपदेश सुन, या शास्त्र का अभ्यास कर। आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका निर्णय करने के बाद बाहर से मति ज्ञान उपयोग को समेट ले, श्रुत ज्ञान उपयोग को भी बाहर से समेट कर मति श्रुत ज्ञान उपयोग आत्म स्वभाव सन्मुख करने से आत्म स्वभाव प्रतीति में भी आता है, जानने में भी आता है और उसका आस्वाद भी होता है। वो श्रद्धान करने वाली पर्याय, जानने वाली पर्याय कि अतीन्द्रिय सुख की पर्याय सब आत्म स्वभाव में अभेद होने के कारण आत्मा यानी समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अब भावार्थ। आत्माने प्रथम आगम ज्ञान थी ज्ञान स्वरूप निश्चय करीने પછી ઇન્દ્રિય બુદ્ધિરૂપ મતિ જ્ઞાનને જ્ઞાન માત્રમાં જ મેળવી દઈને શું કહે છે? પ્રથમ સવિકલ દશા દ્વારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું, પ્રથમ આત્માને જાણવું, આત્માને જાણવા શું કરવું?
તો કે જ્ઞાનીના ઉપદેશનું અવલંબન લે. જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાક્ષાત ન હોય તો નિત્ય બોધક એવા આગમો, એવી જીનવાણી, એનો આધાર લઈ આત્માનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજવું. આત્માના સ્વરૂપનો નિર્ણય કર્યા પછી ઇન્દ્રિય અને મન ના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થતો મતિ જ્ઞાન ઉપયોગ એને રોકીને, એટલે કે પરદ્રવ્યમાં ફેલાવ્યા વગર એ ઉપયોગને આત્મસન્મુખ કરવો. એટલે કે જ્ઞાન માત્ર આત્મામાં મતિ જ્ઞાન ઉપયોગ ભેળવી દેવો. અને શ્રુત જ્ઞાન ઉપયોગને પણ વિકલ્પ રહિત કરી. વિકલ્પ રહિત કેમ થાય? તો કે જે શુદ્ધાત્મા અખંડ એકરૂપ છે, અખંડ એકરૂપ છે, એવા અખંડ એકરૂપ આત્મામાં મતિ શ્રુત જ્ઞાન ઉપયોગ મૂકવો. ત્યારે સર્વ પ્રકારના વિકલ્પો છૂટી જતા તું નિર્વિકલ્પ થઈ જઈશ અને અખંડ પ્રતિભાસમય એવો શુદ્ધાત્મા, એનું જ્ઞાન થશે, એનું શ્રદ્ધાન થશે. એ શુદ્ધાત્માનું શ્રદ્ધાંત એ સમ્યક દર્શન, શુદ્ધાત્માનું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન એ સમ્યક જ્ઞાન. આવું સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન એ આત્મા અનુભવથી જુદું નથી. એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાય આત્માથી ભિન્ન નથી. તો જે વાત ટીકામાં બતાવી હતી એ જ વાત ભાવાર્થમાં લીધી છે, એટલે આપણે વિશેષ વિસ્તાર કરતા નથી. अब भावार्थ फिर से हिंदी में. आत्मा को प्रथम आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके पूज्य गुरुदेव थे, तब सभा में ये ऐसा प्रश्न आता था कि हमें आत्मा जानना है तो प्रथम क्या करें? तो गुरुदेव कहते थे कि आत्मा के स्वरूप को प्रथम जान. यहाँ आचार्य भगवान वही कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप को जान. जानने के लिए क्या करूं? आत्मा मेरी बुद्धि अनुसार जानूं तो कि नहीं, ज्ञानी के उपदेश के द्वारा जान, या ज्ञानी द्वारा रचा हुआ शास्त्र यानी आगम
उसका अभ्यास करके आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा सविकल्प प्रथम निर्णय कर। ये निर्णय हो जाने के बाद 5 इंद्रिय मन के माध्यम से जो मति ज्ञान की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति बाहर की है, उसको छोड़कर मति ज्ञान उपयोग को आत्म स्वभाव सन्मुख कर ले। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है, तो श्रुत ज्ञान में भी अनेक प्रकार के भेद प्रभेद का ज्ञान हो सकता है। वो अनेक प्रकार के भेद प्रभेद का ज्ञान करोगे तो वो विकल्प उत्पन्न होंगे और वो विकल्प राग होने से आकुलता की उत्पत्ति होगी। इसलिए श्रुत ज्ञान उपयोग को भी आत्म सर्वोक करके श्रुत ज्ञान को निर्विकल्प बनाकर जब दृष्टि और उपयोग दोनों ज्ञायक पर गिरते हैं तब अखंड ज्ञायक कैसा है उसका ज्ञान और श्रद्धा एक साथ हो जाता है। ये दोनों पर्याय चाहे सम्यक दर्शन ही हो कि सम्यक ज्ञान, ये दोनों पर्याय आत्मा के साथ अभेद होने के कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्म स्वभाव से भिन्न नहीं है। ये भावार्थ हुआ। अब 144 गाथा पर आचार्य भगवान तो 2 श्लोक लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, तुम्हें पाछू ले दूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो अब देखो 144 गाथा पर टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव 2 श्लोक की रचना करते हैं। उसमें 93 और 94 2 श्लोक है। उसके बाद आचार्य भगवान पूरे कर्ता कर्म अधिकार का उपसार करेंगे कि पूरे कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा। उसके लिए आचार्य भगवान श्लोक कहेंगे। वो श्लोक आचार्य भगवान 95 से शुरू करके 99 तक श्लोक कहेंगे। तो यहाँ 7 श्लोक है। वो कर्ता कर्म अधिकार के आखिरी श्लोक है। उसमें 2 श्लोक 144 गाथा का विस्तार के लिए हैं और 5 श्लोक
जो कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हो रहा है उसका सार अमृतचंद्र आचार्य देव 5 श्लोक के माध्यम से बताएंगे। अब श्लोक 93। अब का अर्थ है 144 गाथा में आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की विधि और रीत बताई। उस पर अमृतचंद्र आचार्य देव श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, अब का इतना अर्थ है। ये अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ। नयों के पक्षों रहित नई का प्रकार तो अनंत है, लेकिन नई का प्रकार 2 ले, शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं, या तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, या तो द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं। क्योंकि ये नयों का भेद तो पेटा भेद करो तो अनंत है, और नयों का पक्ष एक नई का स्वरूप है, इतना ही आत्मा मानना, उसको नई पक्ष कहते हैं। ये नई पक्ष मन के संग में उत्पन्न होता है, यानी नई पक्ष विकल्प है। विकल्प तो अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं। किसी पर दया करो, किसी को दान दो, किसी की भक्ति करो, किसी की पूजा करो, किसी का अभिषेक करो। तो अनेक प्रकार के भाव तो उत्पन्न होते हैं। तो कि ऐसे नए पक्षों से रहित, यानी विकल्पों से रहित, यानी राग से रहित, ऐसा अचड़ जिसको कोई चलायमान न कर सके, अचड़ निर्विकल्प भाव को, निर्विकल्प भाव यानी निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान जो विभाव से मिश्रित नहीं है, ऐसा निर्मल ज्ञान को पाता हुआ जो समय को, समय यानी आत्मा के सार को प्रकाशते हैं, वो ये समयसार शुद्धात्मा जो आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, यानी आत्मलीन जीवों को वो आत्मा आस्वाद में, अनुभव में, भोगोटा में, जानने में आता है।
वो विज्ञान જ, અહીંયા विज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान है। ભગવાન અને લક્ષ્મીવાન, ભગવાન યાને ગુણવાન। अनंत गुणवान आत्मा को जानना है तो किसके माध्यम से जानोगे? तो कि सम्यक ज्ञान से। तो जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वो तो पवित्र पुराण पुरुष है। ऐसे पुराण पुरुष को जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो कहते कि वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो समयसार ही है। तो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो पर्याय है, उसको आपने समयसार क्यों कहा? तो कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्मा की सत्ता के साथ अभेद है, इसलिए हमने उसको समयसार कहा। ज्यादा क्या कहे? जो अनुभव करने योग्य वस्तु है, जिसका अनुभव करने से ही वस्तु का स्वरूप मालूम पड़ता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्म स्वरूप बताने का विकल्प कितना करे? विकल्प करूं कि अनुभव करूं? ज्यादा क्या कहूं? जो कुछ है मेरे लिए विश्व में, जो कुछ है वो एक ही है। क्या? समयसार। मेरे लिए हितकारी कौन है विश्व में? तो कि मेरे लिए विश्व में मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा एक ही हित का कारण है। वो जो समयसार है उसको भिन्न भिन्न नाम से बोला जाता है। उसको ज्ञायक कहो, दर्शक कहो, शुद्धने का विषय कहो, शुद्ध निश्चय का विषय कहो, शुद्ध परम निश्चय का विषय कहो, दृष्टि का विषय कहो, उसको भगवान आत्मा कहो, उसको सर्वज्ञ कहो, उसको सिद्ध समान कहो, उसको अनंत गुणात्मक कहो, उसको अनंत धर्मात्मक कहो, उसको अनंत शक्ति का पिंड कहो, उसको एक कहो, उसको शुद्ध कहो, उसको अबद्ध कहो, उसको अस्पष्ट कहो, उसको नियत कहो, उसको हानि वृद्धि रहित कहो, उसको संयोगी भाव रहित कहो, उसको गुण भेद से रहित कहो, पर्याय भेद से रहित कहो,
कितना नाम दोगे? तो कि उसके नाम तो उसमें अनंत लक्षण होने के कारण अनंत होते हैं, लेकिन हम उसको एक शुद्धात्मा ही मेरे लिए हित का कारण है। आज मैं लेट हो गया था 10 मिनट, तो आज का स्वाध्याय 50 मिनट चला। कल यही श्लोक गुजराती में चलेगा, उसके बाद आगे चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। અમૃતને પીનાર અમૃતને પાનાર શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો અનુભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો। સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। Thank you very much, Rajubai.